average and instantaneous acceleration. If the velocity of a particle is non-uniform, either in direction or magnitude, the motion is said to be accelerated. एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है? जब या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या दोनों चीज़ें चेंज हो रही हो तो मोशन आपका एक्सेलरेटेड है. इफ change in velocity is delta v in time delta t, then a average is equal to delta v upon delta t, means v2 minus v1 upon t2 minus t1. Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration is simply rate of change of velocity with respect to time at a given instant. स्पेसिफिक इंस्टेंट हो जाता है. सो ए इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंस्टेंट हो गया तो जो टाइम इंटरवल है वो बहुत स्मॉल हो गया, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और जब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाता है तो दैट इट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी टी. Regarding acceleration, we may point that number one, it is a vector quantity having dimensions m0 l t minus 2 and SI unit meter per second square. Second one, if acceleration is 0, velocity will be constant and motion will be uniform. However, if acceleration is constant,
motion is non-uniform. And also, if acceleration is not constant, both acceleration and motion are non-uniform. As by definition, V is equal to ds upon dt, A is equal to dv upon dt. Therefore, this is d upon dt, ds upon dt, or this is equal to d square s upon dt square. यानी i.e. acceleration is double derivative of displacement with respect to time. If velocity is given function of position, then by chain rule A is equal to dv upon dt means dv upon dx into dx upon dt. Therefore, A is equal to v dv upon dx. Dx upon dt is equal to v. Next, as acceleration A is equal to dv upon dt, the slope of velocity versus time graph versus time graph gives acceleration. A is equal to dv upon dt is equal to tangent theta is equal to slope of v versus t. V t acceleration of A divided by acceleration of B is equal to slope of A divided by slope of B, that is equal to tangent of B का है 30 divided by tangent of 60. Therefore, this is 1 by root 3 divided by root 3, that is equal to 1 by 3. यानी कंपेयर किया हमने दोनों के एक्सेलेरेशन को, तो हमारे पास इसके बराबर एक्सेलेरेशन आ गया.
slope of A versus T curve, i.e. dA upon dt represents rate of non-uniformly acceleration. However, we do not define it. We do not define physical quantity. As it is not involved in basic laws. Generally, if magnitude of velocity is increasing, velocity increases, we say acceleration, and if velocity decreases, it is retardation. Examples: a raindrop falls with velocity v, obeying the relation v is equal to v naught 1 minus e raised to the power minus kt from a large distance where k and v naught are constant. Find velocity and acceleration of raindrop at t is equal to 0, t tends to infinity. Solution. क्या दिया हुआ है? v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी. तो क्या हो गया हमारे पास? v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी. व्हेन t is equal to 0, v is equal to v naught minus v naught e raised to the power 0 means v naught minus v naught, that is equal to 0. When t tends to infinity, v is equal to v naught minus v naught e raised to the power minus infinity
This implies that v is equal to v naught minus v naught divided by e raised to the power infinity, और v is equal to v naught minus 0, that is equal to v naught. ये तो वेलोसिटी के लिए हो गया. व्हाट इज एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वी नॉट माइनस वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी. वी नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज़. वी नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज़ रख लेते हैं. ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है माइनस के टी. और बाद में फिर ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है माइनस के. क्या हुआ हमारे पास? ये के वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी. अब दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर मेरे को y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एफ एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो e की पावर एफ एक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ये फार्मूला होता है. तो यहाँ पर हमारे पास e रेज टू द पावर माइनस के टी था, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना था, तो e रेज टू द पावर माइनस के टी तो एज इट इज़, और माइनस के टी का डिफ्रेंशिएशन t की पावर 1 है तो माइनस के आ गया, तो के वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी. तो ये एक्सेलेरेशन आ गया हमारे पास टाइम रिलेशन. अब व्हेन t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू के वी नॉट ई रेज टू द पावर 0 मीन्स के वी नॉट. t टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स a is equal to k v naught e raised to the power minus infinity, that is k v naught divided by e raised to the power infinity. यानी बहुत बड़ी टर्म से डिवाइड कर दिया तो दैट विल बी नियरली इक्वल टू 0. तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद reasons which of the following graph can possibly represents motion of a particle in nature. Explain with reasons which of the following graph can possibly represent the motion of a particle in nature. Distance time graph. ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? कि पहले तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, फिर डिस्टेंस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज एट टाइम t1 it is representing particle is at two positions A and B, which is not possible. पार्टिकल एक टाइम पर दो पोजीशंस के ऊपर नहीं हो सकता. पार्टिकल हमेशा एक टाइम पर एक ही पोजीशन के ऊपर होगा. थर्ड,
speed, time. This graph is also not representing proper motion, as speed is shown negative between interval t1 and t2, and we know that speed can never negative. Fourth, velocity, time. T1, T2. This is also not possible by two reasons. First, at T1 in graph, two velocities are shown. And a particle cannot have two velocities at one instant. Second, at time t2, graph is vertical, means slope is infinite, means acceleration is infinite. Slope क्या देती है? Acceleration, which is not practically possible. Example, what does d magnitude of v divided by dt and dv divided by dt represent? Can dv divided by dt is not equal to 0 if dv divided by dt is not equal to 0? Can d magnitude of v divided by dt will not be equal to 0 if dv by dt is equal to 0? Solution. v magnitude divided by dt represents rate of change of speed, as v vector magnitude is equal to v.
while dv divided by dt represents magnitude of acceleration. dv divided by dt is equal to 0 means a is equal to 0 means velocity is uniform, means speed यूनिफॉर्म. स्पीड यूनिफॉर्म हो गई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो स्पीड भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. तो इसका मतलब dv मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई dt विल बी इक्वल टू 0. यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन किसका होगा, 0 के बराबर होगा. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव dv divided by dt is equal to 0 if is not equal to 0 if dv divided by dt is equal to 0. Example, r is equal to sin ti plus cos tj. What is the trajectory of particle? What do you mean by trajectory? Trajectory का मीनिंग है कि पार्टिकल किस तरह का पाथ फॉलो करता है. Either it follows a straight line, or it follows parabolic path, or it follows circular path, or it follows elliptical path. किस तरह का पाथ फॉलो करता है. और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा कि भाई हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है. अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह का है जब तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है. y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर तो पैराबोला है. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर है तो सर्कल है. एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इलिप्स है. ये जनरल इक्वेशंस है हमारी सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला की. तो हम यहाँ से ढूंढते हैं कि भाई एक्स में और वाई में रिलेशन क्या आएगा. तो हम जनरल करते हैं कि भाई हमारे पास आर होता क्या है, आर वेक्टर इज गिवन बाई पोजीशन एक्स आई प्लस वाई जे. तो यहाँ से हमारे पास x किसके बराबर आ गया, साइन टी के बराबर आ गया. y किसके बराबर आ गया, कॉस टी के बराबर आ गया. स्क्वेयरिंग एंड एडिंग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर टी प्लस कॉस स्क्वेयर टी. तो ये आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 हो गया. ऐसा सर्कल आ गया जिसका रेडियस 1 है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी सर्कुलर. नेक्स्ट एग्जांपल, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन moving in a plane with velocity given by v is equal to u naught I plus a omega cos omega t j. If the particle
is at rest at origin at t is equal to 0, calculate trajectory of the particle and its distance from origin at time 3 pi by 2 omega. Solution. We are given V is equal to u naught I plus a omega cos omega t j. Comparing with V is equal to Vxi plus Vyj. Vx is equal to u naught, Vy is equal to a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. दोनों को हमने कंपेयर कर दिया. नाउ वी एक्स का क्या मतलब है, डी एक्स अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू यू नॉट, और वी वाई का क्या मतलब है, डी वाई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट डी टी और डी वाई इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी डी टी. इंटीग्रेटिंग 0 टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट है, 0 टू टी डी टी. इसी का इंटीग्रेशन करते हैं. v किसके बराबर है, u नॉट आई प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे. कंपेरिजन विद v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे. वी एक्स इज इक्वल टू यू नॉट, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से कंपेयर हुआ, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से कंपेयर हुआ. तो डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर हो गया, यू नॉट के बराबर. तो डी एक्स किसके बराबर हो गया, वी नॉट डी टी के बराबर हो गया. तो इंटीग्रेट कर देते हैं. 0 टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट है, 0 टू टी डी टी. तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेट करें, डी एक्स का सीधा सीधा x कहाँ से कहाँ तक, 0 से x, और वी नॉट डी टी का कितना, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से t. तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू वी नॉट टी. तो यहाँ से मेरे पास t आ गया x बाई वी नॉट. यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं. 0 टू y, 0 से y तक क्यों किया, हमें पोजीशन चाहिए. t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल आपका ओरिजिन पर है इसलिए 0, और अब कहाँ पर है, y पर. dy ए ओमेगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 टू t कॉस ओमेगा t dt. dy का इंटीग्रेशन y कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के y तक. ए ओमेगा कांस्टेंट कॉस ओमेगा t का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा, 0 टू t. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और जो थीटा होता है उसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ता है. तो थीटा क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी. ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, ओमेगा से. तो यहाँ से आपके पास आ गए ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो गया. तो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ t की जगह t ओमेगा t और साइन 0 0 होता है. तो यहाँ पर हम पुट t इज इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट. तो y आ गया हमारे पास a साइन ऑफ ओमेगा t की जगह आ गया x बाई वी नॉट. तो हमारे पास
y जो है फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो हमारी ट्रेजेक्ट्री किस तरह की आ जाएगी? तो क्या हुआ हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा x डिवाइडेड बाई वी नॉट आ गया। तो ये हमारे पास y जो है वो साइन फंक्शन आ गया, और साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम दिस। तो बी पार्ट कैलकुलेट करते हैं। x हमने निकाला, v नॉट t। तो एट t इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 ओमेगा, x इज इक्वल टू 3 पाई v नॉट डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी आ गई? x की आ गई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। तो ये हो गया a साइन ऑफ ओमेगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, a आपके पास साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 हमारा साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 कितना होता है? साइन ऑफ 270 आपका थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, -1 हो गया, तो -a। तो अब डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो ये आपके पास हो गया स्क्वेयर रूट ऑफ 3 पाई वी नॉट, 3 पाई वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second in 10 seconds. The velocity changes 5 meter per second northward. What is the average acceleration during interval? Solution. Here v1 is equal to 5 meter per second east, v2 is equal to 5 meter per second north. एवरेज एक्सेलेरेशन, ये एवरेज मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज v1, दिस इज v2, एंगल कितना हो गया? 90। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस लेना है, डिफरेंस ले रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू कॉस 90 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके पास हो गया 5√2 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 1/√2 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करके चलें पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये हमारे पास क्या हो गया? v1 माइनस
ओ सी रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ V2 माइनस V1 मीन्स कौन सा हो गया ये हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट। कौन सा हो गया ये हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट। एग्जाम्पल, what is the retardation of a moving particle if the relation between time and position is t is equal to ax square plus bx। देखो क्या है बेटा, t किसके बराबर है, ax स्क्वायर प्लस bx के बराबर है। v हमारा dx अपॉन dt के बराबर है, तो हम dt अपॉन dx निकाल लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो dt अपॉन dx किसके बराबर हो गया, 2ax प्लस b। भाई पावर 2 थी, साइड में आ गई 2ax, यहाँ पर पावर 1 है, हट गई b। तो v किसके बराबर हो गया हमारे पास, v हो गया हमारे पास 2ax प्लस b रेज टू द पावर -1। अब चेन रूल क्या कहता है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डी वी को dx से डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v। तो a हो गया हमारे पास v डी वी अपॉन डी एक्स। तो a हमारे पास हो गया v डी वी अपॉन डी एक्स। ऊपर इक्वेशन 1 क्या कहती है, v इज इक्वल टू 2ax प्लस b माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, -1 2ax प्लस बी रेज टू द पावर -2 इंटू 2a। कैसे, पहले तो पावर का डिफ्रेंशिएशन किया, -1 साइड में आ गई, 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन 2a। तो डी वी अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2a इंटू, हमने -2 की पावर को -1 लिख करके 2 ऊपर लिख दिया, 2ax प्लस बी पावर -1 रेज टू द पावर 2। तो क्या हुआ हमारे पास, पुटिंग 2ax प्लस बी रेज टू द पावर -1 को v के बराबर पुट कर दिया, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a v स्क्वेयर। वी स्क्वेयर कैसे आ गया, 2ax प्लस बी की पावर -1 को v लिख दिया, तो v स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमने माइनस v, माइनस कहाँ से आ गया, ये वाला माइनस है, और 2a स्क्वेयर, तो -2a क्यूब आ गया। तो रिटार्डेशन में माइनस हटा देते हैं, 2a क्यूब आ गया। एग्जाम्पल, s इज इक्वल टू टी क्यूब -6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4। कैलकुलेट v when a is 0। तो what is v, v is ds upon dt, that is equal to 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3। कैसे आया, t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वेयर, 6t स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 12t और 3t का 3। पर हमें वेलोसिटी निकालनी है कब, जब एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हमारा, डी वी अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू 4t माइनस 12। तो 4a इज इक्वल टू 0, 4t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग t इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, v इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर, 3 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू सॉरी क्या हो गया, ये 3t स्क्वेयर का 6t होगा, 6t माइनस 12, तो t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, स्क्वेयर और 2, तो ये आपके पास आ गया
प्लस 3, 12 minus 24 plus 3 means minus 9 meter per second.